طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہوئے 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 طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے، تو اچھا کام نہیں ہے۔ قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ، شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے۔ اگر بیوی میں غلطی ہے، محبت سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی، تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں مان رہی، وَضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غلط ہے، آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے، اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی، اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا، تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، گزارا چلاؤ، کیا کرو؟ ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک۔ مارنے کا حکم جو ہے نا، مارنے کی جو اجازت، حکم تو نہیں ہے، اجازت جو ہے یہ انتہائی، یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو دوائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورت حال ہو رہی ہے تو اس پہ مارنے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا، یا آپ کی اماں سے بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے، تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں، ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، امی کے گھر چلی گئی، فلانی نانی کے گھر چلی گئی، ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے مستقبل کا ذریعہ بن جائے، یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا، جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا، تو پھر اللہ نے عورت کو 2 آپشن دیے ہیں، یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھائی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر، فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر ہی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو ایسا بھی نہیں ملے گا، ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے، کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے، کچھ میں کر رہی ہوں، کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے، پان گٹکے کھاتا رہتا ہے سارا دن، لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا، بچوں کا باپ تو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے، تو بیچ کا راستہ اختیار کرو، سلو میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، طلاق نہ تو الگ الگ رہ لو یار، کیا خیال ہے؟ ہفتے میں 1 دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس، تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ، تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ، حلال ڈیٹ بھائی، کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے، ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں یار جب نہیں 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو، تم الگ رہو قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات بس ملو اور خیر خیر پوچھ کے پتلی گری سے، کیونکہ پھر وہاں پٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے میرا میاں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار، طلاق سے بچنے کے لیے۔ پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے طلاق لے۔ بولے بھائی مجھے فارغ کرو، کم وقت فارغ نہیں کر رہا، رشتہ داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے، اس کو، یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل، دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے، کچھ بھی کیا جائے، اس طرح سے جان چھڑائی، رائٹ کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے، لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا، تو اس طرح سے نکلوائی جائے، پیسوں کا لالچ دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے، پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا، وہ پیسے اللہ قیامت میں اس سے نکلوا لے گا، یہ نہ سمجھے کہ یار تو پیسے مل رہے ہیں، تو دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے، آخرت کا وہ اللہ نکلوائے گا کہ مرد جب تو ظلم کر رہا تھا کس بیس پہ تو نے پیسے لیے ہیں، تو یہ اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، پھٹے ہو رہے ہیں، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، لڑکی کے ابا جب اپنی بیٹی کی بات سنتے ہیں ان کو لگتا ہے بیٹی صحیح ہے، داماد کی سنتے ہیں تو لگتا ہے داماد، وہاں بھی یہی حال ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائی کا ڈر ہے، دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے، ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا، یہ بڑی پرابلم ہے، سارے چاچے مامے آ گئے بھائی، پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اتنے سارے ٹبر کو بلانے کو، اور اس میں یہ بھی نہیں، علماء کہتے ہیں ایسے بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی، حقیقت ہے یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی، اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس، دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی، میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے، جب تو رشتہ لینے آئی تھی کم بخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، 1 لاکھ تنخواہ ہے، یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے، تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا، اور
तेरे बेटे तूने कमर जादू करवाया जो यानी फायदे के बजाय क्या होगा, नई जंग छिड़ जाएगी, नई जंग छिड़ जाएगी। तो इसलिए इन मामलात में किसको डालना चाहिए, मर्दों को। वो अपने किससे लेके बैठे कमेटियां, तू कमेटी क्यों खा के बैठी हुई है भाई तो एक ऐसी जंग छिड़ेगी जो लामुतनाही होगी। मेरे पास कल किसी का फोन आया कि सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, मेरी बीवी और सास का, मैं परेशान हूं। मैंने कहा खुदा ने इस कायनात में आज तक कोई ऐसा जज पैदा किया ही नहीं है जो ये फैसला कर ले कि सास बहू के झगड़ों में सही कौन है। मैंने कहा किसी के बाप में ऐसा दम, ये सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा ना, वो भी फैसला नहीं कर सकता। उसके पास जाओगे वो कहेगा भाई मेरे से मर्डर के केस में हल करवा। मैं इसराइल और फिलिस्तीन का मसला हल कर सकता हूं, कश्मीर का केस डालो मैं 2 मिनट में फैसला कर लूंगा। वो कहेगा ये फैसला मेरे से मुमकिन नहीं है क्योंकि ये मैं खुद अपने घर में हल नहीं कर सका। तो ये है ही नहीं। इसलिए जब ऐसा हो रहा है अलग, भाई कौन सही है कौन अलग, भाड़ में जाए, तुम अलग रहोगी अम्मा, तुम अलग रहोगी, ठीक है ना। इसका यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो वो जो है अल्लाह ने कहा कि इधर से एक बंदा और उधर से समझदार आदमी, 2 खानदान के बिलाएं, वो बैठ के दोनों की बात सुने, फैसला करें कौन गलत है कौन सही है, फॉल्ट कहां है, जो स्क्रू पाने से जो स्क्रू ढीला है उसको टाइट कर दें, ठीक है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि युरीदा इस्लाहन, अगर मियां बीवी वाकई मिलकर रहना चाहते हैं तो अल्लाह इस जरगे के बाद इनमें मोहब्बत पैदा कर देगा। ये अल्लाह ने वादा किया है। गलत फहमियों से भी बाज़ दफ़ा लड़ाइयां हो रही होती, इससे पता चल गया अगर दोनों में से एक ही पखरोटी है, वो चाहता ही नहीं है, फिर दुनिया की कोई ताकत इस मसले को हल नहीं। वो बाज़ दफ़ा होता है कि वो ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना, वो चाहता ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हल नहीं हो रहा मसला, फिर तलाक है, समझ रहे हैं। फिर क्या है, फिर भाई अलग ही करो, फिर जबरदस्ती चिपका के रखना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। फिर इस्लाम में तलाक है, अलग करो इनको। कोई सुलूक की सूरत भी नहीं निकल रही, दरमियानी कोई सूरत भी नहीं कि भाई तू कायदे आज़म के मज़ार पे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर अलहदगी, क्योंकि फिर जबरदस्ती फिर डिप्रेशन में जाएंगे, खुदकुशियां होंगी, कत्ल वगारत होते हैं। हमारे यहाँ तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है, बुरी है इतनी नहीं जितना हमारे मुआशरे में समझा जाता है। इस प्रोसेस के बाद अगर तलाक होती है तो फिर वो बुरी नहीं है, बल्कि उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। लोग कहते हैं बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे वैसे ज्यादा रुलेंगे जब अम्मा अब्बा को हर वक्त चाकू छुरी से लड़ते हुए देखेंगे। ज्यादा अलग होंगे तो दोनों आराम से पल जाएंगे, मैं तुम मारा हो तुम मारा हो, बच्चों की खातिर बच्चों को भी कायदे आज़म के, अब तो कायदे आज़म के मज़ार पे आ नहीं सकते, ठीक है क्योंकि तो अलग ही हो जाएगी ना। तो अब ये है कि वो जाना भी नहीं, वो कहीं और किसी और के साथ ना पकड़ा जाए। तो बच्चों की खातिर हम क्या है भाई, तुम मेरी बीवी तो नहीं हो लेकिन बच्चों की बहरहाल माँ हो, तुम मेरे शौहर तो नहीं लेकिन मेरे बच्चों के अब्बा हो। तो बच्चों की खातिर हम जो है आपस में कोई बंदा रख लेते दरमियान में, जो हमारे दरमियान बातचीत को ट्रांसफर करे, और बच्चों की खातिर हम दोनों इनकी तकरीबात में भी जाया करेंगे। अरब में ऐसा ही होता है, तलाक के बाद भी वो बच्चों की शादी में माँ बाप आ रहे होते हैं, हालांकि उनमें डिवोर्स हो चुकी होती है, रिश्ता लेने इकट्ठे जा रहे होते हैं। भाई उनको तो अपनी अम्मा को लेकर रक्षे में उनके घर पहुंच, मैं यहाँ से पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना। उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हमारे इख्तलाफात हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं, रिश्ते में हम इकट्ठे हैं। तो ये बड़े आराम से भी हो सकता है, लेकिन जाहिल लोग हैं, जहालत वाला माशरा है, जंगली है, जाहिल का लफ्ज़ कम है इसके लिए, माजरत के साथ, हम जंगली लोग हैं। इन चीज़ों में ऐसा जंगलीपन का सबूत देते हैं कि मामला बिगड़ता चला। औरत बच्चों को लेकर गायब, शौहर का हाथ आया तो शौहर बच्चों को लेकर मार्केट से शॉर्ट, बस ये होता है। तो फिर अलग है, फिर अलहदगी का अल्लाह ने तरीका बयान किया कि जब औरत हैज से पाक हो जाए, पाकी की अयाम में हो, जिसमें मर्द का अक्सर हमबिस्तरी का दिल करता है, तो जब दिल चाह रहा होगा आपका, तो अल्लाह कहते हैं आपने चूंकि तलाक देनी है तो आपको हमबिस्तरी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब छोड़ना है तो अपनी ख्वाहिश पूरी करके उसको टिश्यू पेपर की तरह, अगर आपने हमबिस्तरी कर ली तो अब आपको इस पाकी की अयाम में तलाक की इजाजत नहीं है। देंगे तो तलाक तो हो जाएगी मगर गुनाह मिलेगा, ये गैर शरई तलाक होगी। अब आप अगले महीने का इंतजार करें, ये गलत है कि अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, छोड़ना था तो करीब क्यों जा रहा है। इसमें यह भी डर है कि हमल ना ठहर जाए, हमल ठहरेगा तो इद्दत क्या हो जाएगी लंबी, और औरत कंफ्यूज होगी कि पता नहीं हमल है या नहीं है। तो 10 मसाइल हैं, तो आप उससे सेक्सुअल रिलेशन कायम नहीं कर सकते, हालत हैज में भी नहीं दे सकते क्योंकि उसमें हमबिस्तरी की इजाजत ही नहीं है। तो जब इजाजत है लेकिन आप फिर भी दे रहे हैं, ये इसकी अलामत है आप तलाक देने में सच्चे हैं, क्योंकि आपकी जरूरत उससे वाबस्ता है, मगर आप फिर भी उसको, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि इस कंडीशन में आने के बाद आदमी कहता है मैं नहीं दे रहा हूं, मैं दे नहीं रहा, बस जैसी मर्जी आड़ी तिरछी जो मर्जी है यार, लेकिन मैं नहीं, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। मेरे लिए अल्लाह ने एक इंतजाम किया हुआ है भाई, मैं इधर उधर जाके मुंह मारने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे कहां से रिश्ता मिलेगा, और मिलने में भी 1.5 साल तो लग जाएगा, पता नहीं क्या निकले, वो आड़ा तिरछा रिश्ता मिले, वो कम से कम चलो बच्चों की माँ है या जो भी है। तो बसा औकात यहां तक नौबत आएगी नहीं। खुदा की कसम इस्लाम ने जो तलाक का तरीका बयान किया ना, वो तरीका ही एक नबी का मुजज़ा है। तो अगर आपने उससे करीब चले गए तो आप डिवोर्स नहीं दे सकते, और अगर नहीं गए तो फिर दे सकते हैं, मगर कितनी, एक, दूसरी देना हराम है। दी तो वाजिब ताज़ीर है, हुकूमत पर लाजिम है आपके खिलाफ केस चलाए और आपको अंदर कर दे कि आपने जब एक देना जायज था तो एक से ज्यादा जब जायज नहीं था आपने दी क्यों। समझ आ रही बात, ये कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है कि तोहर में एक से ज्यादा आप तलाक नहीं दे सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, औरत को इजाजत नहीं है कि वो आपके घर से जाए। हमारे यहां तलाक का लफ्ज़ सुना, औरत पर्स लटका के अपने बाप के घर गई, वो बंदूकें निकाल के लाया, रुजू की जो थोड़ी बहुत सूरत मुमकिन थी उसका दरवाजा बंद। वो इतनी गालियां दामाद को पड़ी कि दामाद ने कहा अच्छा, वो दूसरी और तीसरी भी उसी वक्त निकालता है, फिर रोता फिरता है सारी जिंदगी। फिर वो कभी अहले हदीस से फतवा लेकर आएगा, कभी कहां से फतवा लेकर आएगा, 3 नहीं होती, 1 होती है। तो अल्लाह ने कहा कि औरत को घर से निकलने की इजाजत नहीं, इधर ही रहेगी वो, और मर्द को राइट है कि वो रुजू कर सकता। अब मर्द पूरा महीना सबर करेगा, दूसरे कमरे में जाके सोएगा, यादें आएंगी, फिर पुराने किस्से आएंगे, यार वो वक्त याद करो जब SMS आया करते थे, हैं कायदे आज़म के मज़ार पे कितनी मुश्किल से छुप छुपा के मिला करते थे। अब अल्लाह ने इतना 7 कमरा है और नहीं मिल रहा,
पूरा महीना आप सब्र तहम्मुल से गुजारेंगे, अगर आपने करीब चले गए तो वो तलाक से रुजू हो गया, नहीं गए अगले महीने फिर जब हैज आएगा वो हैज से पाक होगी, आप सब्र, औरत को इजाजत नहीं है कि वो घर से निकले, हत्ता कि जॉब के लिए भी नहीं जा सकती, अब घर की चार दीवारी में उसको बंद रहना, बाहर जाएगी 10 लोग खराब करेंगे उसको, समझ रहे हैं? बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं घर की चार दीवारी में, ना 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 आपको यहां, हत्ता कि अगर उलमा ने लिखा है मर से खतरा हो तो मर को हुक्म दे देगा आप घर से बाहर चले जाओ, औरत नहीं जाएगी, क्योंकि कुरान ने कहा ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, तलाक के बाद औरत को घर से निकालने की इजाजत नहीं है जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती। फिर दूसरा महीना शुरू होगा, आपके जज्बात उस, अगर मुंह काला करने की आदत नहीं है इधर उधर, ये उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ने हकाम दिए हैं जो पाक दामन लोग हैं, मुंह काला करने वालों के घर नहीं बसते, समझ रहे? फिर दूसरा महीना आएगा, आपने नहीं देनी, दूसरी तलाक नहीं देनी आपने, ये बेहतर नहीं है, दे सकते हैं मगर बेहतर नहीं है। फिर तीसरा महीना आएगा, सही है ना, धमकियों की शिद्दत भी कुछ कम होगी, ससुर और दामादों की, वो जो सालों की, वो भी सोचेंगे यार धमकियां तो बहुत देती, लेकिन क्या बहन को घर बिठा सकते हो? क्या ख्याल है भाई, बिठा सकते हो? हैं वो टांगे तोड़ दी, टांगे तोड़ दी तो दामादी लुंजा हो गया वो लंगड़ा हो गया, क्या करेंगे? वो भी बहुत सोचेंगे, औरत को भी सोचने का मौका मिलेगा, देख लो अभी शौहर वहां सो रहा है, ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जब बिल्कुल ही अलग हो जाओगी तो बर्दाश्त कर लोगी, जैसा है आड़ा तिरछा गुजारा चला, हो सकता है वो जाके मना ले। तो 3 महीने का अल्लाह ने टाइम दिया आपको सुधरने का, औरत को भी सुधरने का, आपको भी सुधरने का। 3 महीने जब पूरे होंगे, तीसरा हैज आके जब खत्म होगा तो अल्लाह कहते हैं अपने कहा खत्म, अब क्या हो गया बोलो भाई, खत्म। लेकिन ऐसा खत्म नहीं हुआ कि दोबारा जोड़ नहीं हो सकता, एक तलाक हो गई है, निकाह खत्म हो गया, औरत जाए अपने घर में जहां चाहे शादी करे, पुराना वाला अच्छा लगता है दोबारा पैगाम भेज दे, आपको भी इजाजत है जहां चाहे शादी करें, पुरानी याद आ रही है अभी नहीं 1 साल के बाद 2 साल के बाद, क्योंकि आपको भी तजर्बा हो गया ना धक्के खा के, तो 4 शादियों का सोचा हुआ था, एक भी नहीं मिल रही। ये जो सुनते तलाक दी है तो वैसे लोग डर जाते हैं यार, पता नहीं कैसा किसका फॉल्ट, हमें लोगों को थोड़ी पता है कि किसका फॉल्ट है, लोग तो डरते तो हैं बहरहाल, उनका हक है कि डरे वो। तो फिर 1 साल के बाद आप पुरानी वाली से राब्ता करें, उसका भी दिल नरम है, दोबारा निकाह कर लें, क्या ख्याल है? फिर अगर होता है तो इसी प्रोसेस से गुजर के दूसरी, फिर अगर होता है तो फिर इसी प्रोसेस से गुजर के इतनी नौबत नहीं आएगी, समझ रहे हैं? और अगर 3 ही देनी है कि नहीं जी मैं अपने लिए वापसी का ऑप्शन खत्म कर रहा हूं, कहीं मुझे लोग ये पहना ना दे दोबारा, बाज़ दफा ऐसा भी होता है आदमी को पता है यार हमारी नहीं बनने वाली, खाम खमे एक अजाब बन जाएगा, और मेरी तबीयत में नरमी है, जब 3 महीने बाद हमारी अलहदगी होगी तो फिर लोग इसको दोबारा पहना देंगे रिश्तेदार, और मैं पहन लूंगा, है ठीक है ना, ऐसी शरारती बाज औरतें होती हैं। तो फिर उसका तरीका अल्लाह ने रखा है कि चलो अगर तुम ये समझते हो तो दूसरे तोहर में ज़ौजा के करीब मत जाओ, पाकी के अय्याम में दूसरी दे दो, क्योंकि अब तुम बेहतर फैसला कर सकते हो कि 3 देनी चाहिए कि नहीं, और तीसरे तोहर में तीसरी दे दो। तीसरी देने के बाद जब हैज आके इद्दत खत्म होगी, अब तुम्हारी दोबारा इससे शादी, अब अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा चांस नहीं दे रहे, क्योंकि जो तजर्बा एक दफा हो चुका है वो तजर्बा दोबारा मत करो। कहते हैं ना मोमिन 1 सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, तो अब दोबारा रिश्तेदारों को भी अल्लाह ने खत्म कर दिया तीसरी के बाद। तो ये तरीका अल्लाह ने बयान किया है, मगर इस तरीके पर 100 में कोई एक शायद दुनिया में होगा जो अमल करता हो। गैर शरई तलाकें हो रही हैं, खड़े खड़े थार 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 तलाक निकाली जाती है, और बीवी हराम हो गई, अब जाके फतवे मार्केट में हर किस्म के मिल रहे हैं, कोई कह रहा है गुस्से में तलाक नहीं होती, कोई कह रहा है 3 एक होती है, कोई कह रहा है जज्बात में नहीं होती, कोई कह रहा है लिख के नहीं होती, कोई कह रहा है यूं नहीं होती, भाई हर तरह से होती है। तलाक में अल्लाह ने रिवर्स गेयर रखा ही नहीं है, ताकि तलाक की को लोग मजाक और हंसी की चीज ना बना लें। आप देंगे तलाक, बोलेंगे मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, और सऊदी अरब में भी हर किस्म की चीजें मिल रही हैं, याद रखो। लोग सऊदीया से फतवा ले आते हैं, जैसे हमारे यहाँ हर किस्म की मार्केट में मुफ्ती दस्तयाब है, तो सऊदी अरब में भी है, जैसा आप बोलेंगे वैसा फतवा आपको सऊदीया से भी मिल जाएगा। लेकिन तुम सऊदीया से लेकर आए हैं, तो वो दूध के धुले हुए के जमजम के नहाए हुए लोग हैं, वो भी हमारी तरह के गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, उनमें भी हर तरह के लोग हैं, कुछ मुहक्किक हैं, कुछ जाहिल हैं, हर तरह के लोग हैं। तो सिर्फ मक्का का लेवल लग जाना या मदीना का लेवल लग जाने से, मदीना में तो कुत्ते भी होते हैं भाई अब ये थोड़ी कि कुत्ता है तो आप उसको गले लगाओ के मदीना से आया है, तो कुत्ता ना, यहूदी भी तो मदीना में रहते थे नबी के दौर में, अबू जहल तो मक्का का था ना, तो वहां भी खुदा न खास्ता मैं उन उलमा को अबू जहल से तशबीह नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं वहां भी अहले हक भी हैं, अहले बातिल भी है। तो यूनिवर्सिटियों में आजाद ख्याल लोग भी हैं, तो लोग कहते हैं वो मक्का यूनिवर्सिटी से फतवा लेकर आया है। भाई फतवा किसका है? ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। हम चारों आइमा का जो फतवा है, जो कुरान और हदीस को जानते थे, और कुरान मैं भी इस पे क्लिप भी रिकॉर्ड करवाऊंगा, वो यही है कि 3 तलाकें 3 ही होती हैं, एक नहीं होती। तो तलाक देने से पहले सोच लिया करें कि किस तरह से देनी है। अगर इस तरह से आप देना शुरू कर देंगे, अव्वल तो दे ही नहीं, और अगर देने की मजबूरी है तो ये तरीका अल्लाह ने बयान किया। इसमें अगर अलहदगी हो रही है, इसका मतलब है वाकई ये इस काबिल थे कि इनमें अलहदगी हो। इसके बाद भी अगर इनको रहना चाहिए तो पागल है, ठीक है ना, इतनी तमीज से दी है, इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर मियां बीवी से पूछने की जरूरत ही नहीं है क्यों हुई, तो आप समझ लो यार ये लोग आपस में रह नहीं सकते। गुस्सा गलत है, गुस्से में फैसले गलत हैं। अल्लाह का वास्ता जब बीवी से झगड़ा हो, तलाक के अलावा कुछ और कर लिया करो, हर चीज का हल मौजूद है। आप डंडा भी मारोगे ना, वो तलाफी हो सकती है, वो आपके बाद में साले एक डंडा मार देंगे सर पे, वो तलाफी हो सकती है। आपने बेगम बिलावल डंडा मारा, साले से डंडा मरवा लो, पड़ा था आप भी मेरा सर, ये उसके जख्म का इलाज हो सकता है। तलाक में अल्लाह ने रिवर्स गेयर नहीं रखा, अपनी जानों पर रहम करो, तलाक का लफ्ज ना निकाला करो। निकालना है बहुत लंबा प्रोसेस अल्लाह ने रखा है, और इससे पहले भी मशवरे ले लिया करो उलमा से, भाई ये है, हो सकता है गलती आपकी उस बेचारी का। और हमारे मुआशरे में तो औरत को तलाक देना ऐसे जैसे चाकू मार दिया, जिंदगी बर्बाद हो जाती है बेचारी की। तो अल्लाह ताला हमें इंसान का बच्चा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।